in front of their wives or family members was a big mistake. India has executed Operation Sindoor to teach Pakistani terrorists a lesson. Quite obviously, Pakistanis seem terrified, and many Indian Muslims seem delighted. To start with, here are some glimpses. Bombed, destroyed, and then this is what the world should see. Reported by BBC Urdu. Masood Azhar of Jaish-e-Mohammed has said that 10 members of his family and 4 close associates have been killed. It seems that Pakistan was open to receiving a response, but likely not one of this scale and accuracy. It seems many Israelis are loving it. The spokesperson of the Israeli embassy in New Delhi posted this: Israel stands with you, India. The ambassador of Israel to India posted, terrorists should know there is no place to hide. Meanwhile, the Russians seem to be roasting Pakistan in a very Russian way. Here is a silly meme that the Pakistani defense minister has reportedly posted. Meaning of Sindoor: the red powder many Hindu women wear on their foreheads after marriage. The revenge has been taken for attacking the Sindoor of women who lost their husbands in Pahalgam. But of course, as expected, China finds India's military operation early this morning regrettable. In the USA, Trump's unclear statement. And Marco Rubio says that he's monitoring the situation between India and Pakistan closely. Now, a reaction from Japan condemns the acts of terrorism in India's Pahalgam, but urging both India and Pakistan to exercise restraint and stabilize the situation through dialogue. Reaction from France: avoid escalation. Reaction from UAE: de-escalate tensions. Reaction from UN Secretary General's office, calling for maximum military restraint. Now, Chinese media outlets, as expected, a lot of them are promoting the Pakistani propaganda. Coverage in the Turkish media outlets generally aligns with Pakistan's narrative, strongly pro-Pakistan. Now, the narrative in the Arab media, I would say it is neutral to pro-Pakistan. The truth is that Pakistan's defense minister has himself admitted that his country has been doing the dirty work. सोए हुए थे, एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी, उसके बाद पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है, वहाँ पे गैस है नहीं गैस इधर भी नहीं है, वहाँ पे बिजली है नहीं। ये अभी देख। फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मेरा चैनल ग्रो हो। मेरे चैनल को ग्रो होने में आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज जो मैं जिस पर टॉपिक बना रही हूँ, जिस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ, वो है ऑपरेशन सिंदूर जो लॉन्च किया था भारत ने। उसके में पीस हो गया। पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने पर जो उसको नष्ट किया, उसका एम यही था ऑपरेशन सिंदूर का, कि जो आतंकी जो सीमा पार पल रहे हैं उसको ख़त्म करने का। तो उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर, जो कि पहलगाम वाला घटना, कितना शर्मनाक घटना हुआ कि 28 निर्दोष टूरिस्ट को मारा गया, तो उसी के लिए लॉन्च किया भारत सरकार ने। तो अब ये अफवाह है पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच हुई सीज फायर में कई अफवाह, गलत फहमियाँ फैल रही है। कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और नेता द्वारा दावा किया जा रहा है कि भारत पीछे हट गया, डर गया, जबकि वास्तविक इससे बिल्कुल अलग है। तो आइए तथ्यों के आधार पर समझते हैं कि सीज फायर का असली कारण क्या है, अब भारत की स्थिति क्या है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की निर्णायक कार्रवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को भारत द्वारा उस समय शुरू किया गया जब जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 26 निर्दोष और घायल, कुल मिला के 26 की हत्या कर दी गई। इस हमले पर पीछे पाकिस्तानी के समर्थन द्वारा जो आतंकवादी समूह था, उसका घुसपैठ के द्वारा किया गया था। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के भीतर पल रहे आतंकवादी ठिकानों पर सटीक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए।
जिससे आतंकवादी के ठिकानों को नेत नाबुद कर दिया, बुनियादी ढांचा को काफी नुकसान पहुंचाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ऑपरेशन को सर्जिकल प्रिसीजन के साथ किया गया बताया, जिसने नागरिक क्षेत्रों पर नुकसान नहीं पहुंचाया। सीज फायर का आखिर कारण क्या है? जो गलतफहमी वहाँ का यूट्यूबर, जो अधकचरा यूट्यूबर है वहाँ पर, जो वहाँ पर क्रिकेटर है, जो शाहिद अफरीदी जैसा, या वहाँ के जो नेता है, वो लोग जो है उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है, नॉर्मल वहाँ पाकिस्तानी पब्लिक को गुमराह कर रहा है। तो गुमराह करने के बजाय पब्लिक को ये चाहिए कि हकीकत न्यूज क्या है उसको जानने की जरूरत है। कोई बोले कौवा कान लेके उड़ गया, तो उसके कौवा को नहीं, पीछे नहीं दौड़ के पहले कान को चेक करे। तो वही है, असली कारण क्या है वो जानने की जरूरत है। रणनीतिक संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव सीज फायर का कारण बना। 4 दिन की तीव्र सैन्य कार्रवाई के बाद 10 मई को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ स्तर पर हॉटलाइन के माध्यम से बातचीत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप सीज फायर पर सहमति बनी। हालांकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, या अमेरिका के करंट राष्ट्रपति, पूर्व नहीं अब करंट है राष्ट्रपति, डोनाल्ड ट्रंप इस सीज फायर में मध्यस्थता का दावा किया, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय दोनों मिलकर बातचीत के माध्यम से हुआ, किसी तीसरे पक्ष के बारे में, तीसरा पक्ष इसमें नहीं है। चीन ने भी सीज फायर का समर्थन किया, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देना। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, वो कभी भी अपने आप को लड़ाई में, युद्ध में नहीं झोंकेगा। पाकिस्तान जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, इकोनॉमी चरमरा गया है। वहाँ का नेता और वहाँ का जो सेना अधिकारी, सेना अध्यक्ष है, वो पैसा लेके देश छोड़ जाता है, फिर उसको देश से कोई मतलब नहीं है, देश से प्यार नहीं है। हमारे भारत में प्राइम मिनिस्टर से लेके, प्रेसिडेंट से लेके, सेनाध्यक्ष सब देश में ही रहते हैं, देश में ही जीते हैं, देश में ही मरते हैं। इसीलिए जिस घर से आपको प्यार होगा वो घर को लोग नहीं तोड़ेगा। वैसे ही पाकिस्तान में मोह और ममता और दया और प्यार नाम का चीज नहीं है, जो अपर लेवल का वहाँ है। सबका लंदन, अमेरिका, कनाडा में घर है। जैसे ही वहाँ से छुट्टी होता है बस पहुंच जाता है, सब चला जाता है, निकल जाता है पाकिस्तान। तो उसको क्या प्यार होगा, क्या अपने कंट्री से लगा होगा। इसीलिए पाकिस्तानी नॉर्मल कंट्री वाला, जो नॉर्मल पब्लिक है, वो समझें कि ये सब गुमराह कर रहा है। गुमराह वो कोई सीज फायर जो है, कोई भी अब जो आतंकवादी जो घटना हुआ, जो आतंकवादी ठिकानों को तोड़ दिया गया, इसके अलावा जो है कोई युद्ध नहीं करना चाहता है। भारत भी नहीं चाहता है कि अस्थिर बने पाकिस्तान। और उससे क्या, जो टेररिस्ट है वो किसी का सगा नहीं होता है, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे किसी कंट्री का हो या भारत का हो। तो पाकिस्तान को ये समझाया गया कि आप टेररिस्ट को पनाह नहीं दो, टेररिस्ट के लिए एक्शन के अगेंस्ट एक्शन लो, नहीं तो कल के डेट में आपको ही जला देगा। आग किसी का सगा नहीं होता है, जिसके हाथ में रहेगा उसी का हाथ जला देता है। तो वही ये एक लेसन देके इंडिया जो है वार जो है रोक दिया, कि ये लेसन पाकिस्तानी समझे और अपने यहाँ जो पल रहे आतंकवादी, जो काटो अड्डा है और आतंकवादी है, उसको खत्म करने का कोशिश करे। नहीं तो इंटरनेशनल आतंकवादी भी वहीं पल रहा है, तो ये उस देश के लिए बहुत खतरनाक होगा जिस देश में पल रहा है। तो वहाँ के जनता को ये जानना जरूरी है कि ये जो सीज फायर है, कोई ट्रंप ने नहीं मध्यस्थता किया। ये दोनों जब ये आतंकवादी ठिकाना तबाह हो गया, तो अपने आप भारत ने कहा कि अब मैं ये काम हो गया। जिस पर्पस से जो आतंकवादी आके हमारे निर्दोष टूरिस्ट को मारा था, उन सबको मार दिया गया बिल्कुल निश्चिंत।
अब आप अपना देश देखो, हम अपना देश चलाते हैं, हम अपना देश देखते हैं। नहीं तो आज देखिए, आज के डेट में कितना कंट्री वार में झुलस रहा है। तो उस तरह इंडिया नहीं चाहता है कि वार कंटिन्यू चले, झुलसते रहे। पाकिस्तान तो तबाह होगा ही, इंडिया भी कम बर्बाद नहीं होगा। इसीलिए भारत एक समझदार कंट्री है, वो इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। वो चाहता है कि जो नुकसान किया है नुकसान वाले को नुकसान करो, बाकी जो आम पब्लिक है पाकिस्तानी, उससे किसी देश को, भारत के सरकार को कोई दुश्मनी नहीं। आम पब्लिक सब आम पब्लिक होता है, चाहे भारत का पब्लिक हो या पाकिस्तान का पब्लिक हो या अमेरिका का पब्लिक हो। आम पब्लिक को क्षति हमारे देश का कोई नहीं पहुंचाया, सिर्फ आतंकी ठिकाने को निशाना बना के उसको तोड़ा, तो वो है। लेकिन भारत के कुछ यूट्यूबर्स, राजनेता, क्रिकेटर्स द्वारा यह प्रसारित किया जा रहा है कि भारत डर गया, पीछे हट गया, और तो इसका आंतरिक राजनीति उद्देश्यों से जनता का ध्यान भटकाना चाह रहा है, ताकि वो ये नहीं बोले कि आटा दो, ये नहीं बोले कि हमको और भी कुछ दो, बिजली बिल इतना महंगा है, कोई चीज का सुविधा नहीं है। तो इस चीज से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ उल जलूल गलत बात अपने मन गढ़ंत कर रहा है। वास्तव में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को स्पष्ट रूप से दर्शाया, यह संदेश दिया कि वो अपनी संप्रभुता और नागरिक की सुरक्षा के लिए किसी हद तक जा सकता है। भारत की स्थिति स्पष्ट और दृढ़ है। स्पष्ट है भारत की स्थिति। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से स्पष्ट किया, ये बात बताया कि वह आतंकवाद के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम है, सामर्थ है। सीज फायर का उद्देश्य युद्ध को टालना नहीं, बल्कि रणनीति संतुलन बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय दबाव का प्रबंधन करना था। पाकिस्तान में फैलाए जा रहे दावों के विपरीत भारत की स्थिति मजबूत और स्पष्ट है। वह अपनी सुरक्षा, संप्रभुता की ओर समझौता नहीं करेगा। आपको भी पता है दोस्तों, और पाकिस्तान के जनता को भी पता है कि भारत चंद्रयान तक लॉन्च कर चुका है। भारत मजबूत है पाकिस्तान से किसी भी मामले में, चाहे जनसंख्या का मामला हो, चाहे सेना का हो, चाहे खाना पीना का मामला हो, चाहे डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे किसी मामला में बहुत सक्षम है, कई गुना सक्षम है। अब भारत की आबादी, भारत का क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। तो ये बात बोलना कि डर गया, ये सब महामूर्खता वाला बात है। तो इस मूर्खता का हम समर्थन नहीं करते हैं। कॉमन सेंस और आम आदमी जो होगा, जो दिमाग लगा के सोचेगा पाकिस्तान में, वो ऐसी बात बोलेगा नहीं। अब भ्रामक बात जो है वो राजनेता, क्रिकेटर और भी कुछ अधकचरा अनपढ़ यूट्यूबर है जो भारत से ही के कंटेंट से खाता कमाता है, वो सारे अधकचरा यही सब बात करके भ्रामक स्थिति फैला रहा है। तो दोस्तों इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और पाकिस्तानी पब्लिक भी और हमारे भारत के पब्लिक भी, हमारे भारत के भी कुछ नेता जो है भ्रामक उल्टा पुल्टा बात करके फैला रहा है, जो कि कितना क्या हुआ हिसाब किताब, जब चला गया सांप निकल गया तो पीठ को डंगा रहा है पकड़ के, तो वो सब गलत। तो हमारे इंडिया का भी पब्लिक, हमारे पाकिस्तान का जो व्यूअर है, आप लोग दिमाग लगा के सोचिए कि भारत डरने वाला नहीं है। भारत सक्षम है आपसे ज्यादा गुना लड़ाई करने के लिए। हर हाल में, हर लिहाज से भारत आपसे बहुत ज्यादा है। लेकिन भारत शांति चाहता है। सिर्फ जिस आतंकवादी ने इस निर्दोष को मारा, उस आतंकवादी के अड्डे को तबाह किया, और किसी आम पब्लिक से दुश्मनी नहीं है, किसी महिला से नहीं है, किसी बच्चे से नहीं है, नहीं कि आम पब्लिक से है। सबको मानवता, भारत का एक ही धर्म है, मानवता। यहाँ सब धर्म सौहार्द है, सभी धर्मों के आदमी रहते हैं। किसी का सबको सेटिस्फाइड करना बस की बात नहीं है सरकार को, लेकिन सारे दुनिया से सब जो है हिंदू सीता हमारा, मतलब हिंदुस्तान सबसे बेस्ट है। सभी मिलके रहते हैं, कोई एकदम से निश्चिंत होकर निर्भीक रहते हैं, और कोई भी
अन्याय किसी के साथ नहीं होता है। तब तक इतना दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आपको समझ में आ गया होगा कि सीज फायर या पीस जो हुआ वो किस कारण से हुआ, कैसे हुआ। तब तक इतना, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि मेरा चैनल ग्रो हो और अच्छा से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाऊं। तब तक के लिए नमस्कार।